anyone comes to you, you have a lot of power, you have a lot of laws to give them justice. That is what I like the most. हमारा पुलिस ऑफिसर स्टाफ काफी स्ट्रेस में रहते हैं, so no one gives them training. The image of police not just enforcement या वो जो डंडा लेके मारने वाले, but as a social service का भी काम कर सकते हैं, and they are human beings and उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए. दिस हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. प्रिपरेशन का टाइम में किसी से बात नहीं करते थे, एंड डोंट गो फॉर शॉर्टकट से यूपीएससी एग्जाम नहीं क्लियर होगा. यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन एक्सेट्रा. डोंट गेट टू मच अटैच्ड टू ऑल दिस थिंग्स. I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Mr. Atul Kulkarni. He is an IPS officer of 2015 batch, Maharashtra cadre. He secured an All India rank of 180 in Civil Service Examination in the year 2014. He is the author of the book known as Post-Independence India for Civil Service Aspirants. It's an honor to welcome Mr. Atul Kulkarni to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you, Gaurav ji. So tell us about your childhood and hobbies you enjoy as a child. Childhood, I mostly used to play cricket. So that is one of the very memorable things. तो कभी सोचा नहीं कि क्रिकेट में जाएं और आपने आईपीएस को क्यों चूज किया? एक्चुअली मैंने 10th स्टैंडर्ड तक क्रिकेट खेल रहा था स्कूल लेवल पे, तो मैंने स्टेट लेवल सिलेक्शन में भी गया था. लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि आई शुड गेट इनटू सीरियस स्टडीज. तो आई स्टार्टेड विद आईआईटी प्रिपरेशंस, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स. Then I never thought about UPSC civil services, but I landed up getting into administration in IPS life. So where did you complete your schooling from? I did my schooling in Sudarshan Vidya Mandir, Bangalore. It was in Jayanagar. So I did schooling from 3rd standard to 10th standard. Before that, my schooling was in Belgaum district, a place called Gokak. Initial schooling उधर हुआ मेरा. So schooling में back bencher थे या front bencher थे आप? बैक बेंचर, लास्ट बेंच में बैठते थे हम. So I used to sit always in the last bench and we were 2-3 people, so we used to ask lot of questions, tricky questions to teachers. बैक बेंचर के पास जनरली बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, खासतौर से शैतानी की. कुछ ऐसी शैतानी जो आप शेयर करना चाहोगे? Nothing much. हम we used to ask questions, हमको आंसर पता रहता था, हम ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते थे टीचर को. तो बगल वाला मैं क्वेश्चन पूछता था या बगल वाला आंसर करता था, बगल वाला क्वेश्चन पूछता था, टीचर आंसर नहीं करते थे और हम दूसरा कोई आंसर कर देता. तो ऐसे हम थोड़ा ट्रिक खेलते. What was your dream profession? बचपन में क्या चाहती कि मैं बड़े होके ये बनूंगा? ऐसा कुछ I didn't have some dream profession. Bangalore being a IT hub, मेरे को लगता था कि I should always get into computer engineering, IT software professional, and I will be working on some technologies, etc. That was my dream, but later on when I entered into engineering or then when I started working, तो मेरा काफी dreams change हुआ. So any specific reason to choose civil service as a career? We were going on a trip to Pondicherry. उसमें I met with a huge accident. So unfortunately we couldn't go along for the trip. But मेरे को I had a life-changing experience and I saw my death. तो उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ. देन इनर से मेरे को ऐसा लगा, मैसेज मिला कि आई शुड वर्क समथिंग फॉर द कंट्री, सोसाइटी, नॉट जस्ट बी वेरी मच फोकस्ड ऑन माई सेल्फ और माई ग्रोथ. एंड उसके बाद आई completely changed my gears. After that incident, after 1 year, then I left my software job and then I gave different exams. मेरे को 4 options थे. एक तो US में जॉब मिला था, सेकेंड गेट इनटू, एवरीवन वेर गोइंग, काफ़ी अभी 50 to 60% दोस्त यूएस में है. दे हैव डन देयर मास्टर्स डिग्री एंड जीआरई लिख के गो इनटू सम यूएस यूनिवर्सिटी, गेट एडमिशन देयर एंड जॉब करो. तो ये भी ऑप्शन था. देन आई वांटेड टू गिव कैट एग्जाम, गेट इनटू टॉप कॉलेजेस, बट आई वांटेड टू डू समथिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क. मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंटिस्ट का एग्जाम दिया, उसमें मेरा क्लियरेंस हुआ. ये सभी ऑप्शंस ओपन थे एंड आई ऑल गॉट सेलेक्टेड. सिम्बायोसिस का भी सिलेक्शन हुआ था, बट आई प्रीफर टू गो टू टेस्ट. तो उधर से मेरा अलग से जर्नी शुरू हुआ. तो जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? इसमें जैसे गया, देन वी हैड लॉट ऑफ एक्सपोजर. वी यूज्ड टू गो टू विजिट स्लम्स. जो भी मेन स्लम्स मुंबई में है, तो वी आर गॉट एक्सपोज. डंपिंग यार्ड्स हो
या नाइट में स्लीपलेस लोग, जो होमलेस लोग हैं तो एक्चुअली वो फुटपाथ में ही सोते हैं। हमने उनका इंटरव्यू किया, अंदर काफ़ी स्टोरीज या उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद हमारा सेंसिटिविटी जो है वो हमको समझ में आ गया कि वल्नरेबल लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग। सो वन ऑफ द लेडी देयर, she was having 4 kids, so I want to narrate this. So this changed my perspective. So she had 4 kids. हमने पूछा कि how much you are earning? So she said 100 rupees per day. तो कितना खाने में कितना खर्च होता है? He said सभी सब कुछ तो खर्च होता है because you have to feed 4 kids और she also has to feed herself. तो हमने पूछा कि why 4 kids? एक kid 2 kids से हो जाता है काम। And she said that no, because मेरा मर्द नहीं है, I don't know where he is. लेकिन जब तक किसी को लगता है कि पेट में बच्चा है, then no one approaches her. So this was very very shocking. So we were sitting on a footpath in the night, and she said that जब बच्चा है या छोटा बच्चा है, बाकी मर्द मेरे को अप्रोच नहीं करते. So these are some of the stories या strategies. हमको लगा कि we have to do something for these people, and then मेरे को लगा कि I should get into the administration, into policy making, yeah, so that I am able to give justice to a lot of people. तो मैंने उधर से यूपीएससी की तैयारी शुरू किया। 13 में मैंने एग्ज़ाम का तैयारी शुरू किया। 13 में आई वर्क इन कंसल्टिंग फर्म। मैं नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कंसल्टेंट था। सो आई यूज्ड टू वर्क विद कमिश्नर सर तो ऑन JNNM RM प्रोजेक्ट्स, तो मोस्टली अर्बन इश्यूज था। तो उसमें मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। देन आई थॉट आई शुड गेट इनटू NGO। तो मैंने बेंगलुरु में एक वाटर का NGO है अर्ग्यम करके, उधर भी मैंने काम किया। देन वी आर हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, झारखंड, उड़ीसा हो, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मेरा काम था कि आई यूज्ड टू गो विजिट दिस प्लेसेस, इवैल्यूएट कि विच प्रोजेक्ट्स ऑन वाटर, सैनिटेशन एंड एजुकेशन, ये तीनों सेक्टर्स हम काम करते थे, मोस्टली वाटर एंड सैनिटेशन। एक बार ऐसे वी हैड गॉन टू केरला, हमने वेल्स का रिचार्ज प्रोजेक्ट किया था। सो देयर गेव अ प्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर, वी हैड डन अ स्मॉल प्रोजेक्ट देयर, तो वी हैड रिचार्ज अराउंड 2000 वेल्स। तो हमने कलेक्टर सर को प्रेजेंटेशन दिया, देन ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेड स्टे बैक फॉर 3 days, विल स्टार्ट एंटायर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करेंगे। एंड ही विदिन 3 days ही एलोकेटेड फंड्स, टीम्स किया, सिस्टम्स तैयार किए। देन ही सेड कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो गया। देन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने सर को पूछा कि सर दिस इज वेरी वंडरफुल। देन ही सेड इफ यू वांट टू रियली डू वर्क और चेंज द सोसाइटी, कुछ चेंजेस लेना है, then it has to be in the scale. Only where you can work for scale is in government sector. जब government में authority में हो, they have lot of structure, institutions, team है, funds है, so there you can really change the way some projects or some issues you can solve at a very good scale. तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मेरे बॉस भी बगल में थे। I said sir बॉस, मेरे को इस UPSC का तैयारी करना है, कलेक्टर होना है मेरे को। देन एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट वर्किंग फॉर 7+ years। सिर्फ 2 अटेम्प्ट बाकी था, एंड लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 1 महीना बाकी था। तो मैं बहुत लोगों को वो पूछता हूँ कि एक महीना बाकी है एंड यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट। नॉट मेनी पीपल टेक रिस्क। तो क्योंकि एवरीवन मेक्स 2-3 years 5 years का प्लान बनाते हैं, लेकिन 1 year में UPSC क्रैक करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने वो चैलेंज लिया। बॉस को मैंने बोला कि बॉस मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC। ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। देन ही सेड आई सेड आई डोंट हैव एनी मच फाइनेंशियल सपोर्ट, आई कैन नॉट रिस्क माय प्रोफेशनल लाइफ आल्सो। देन ही सेड यू बी लाइक अ कंसल्टेंट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। देन आई वेंट टू चेन्नई। उधर से आई वाज वर्किंग आल्सो। देन I started my preparation also. I was staying in a very small room, very minimum kharcha mein I used to started my preparation. So I cannot imagine अभी कैसा हमने शुरू किया preparation। चेन्नई का weather भी it is very hot, going from Bangalore to Chennai. It was a very different and difficult kind of experience. तो summer था, peak summer, मई में
May 21st I think was the exam 2013 का. So I shifted around April. Peak summer था, then food हो या room हो, somehow things got set. वो attempt में I used to sit like 15 hours because एक ही महीना बाकी था for prelims. Then it was very challenging सभी subjects cover करना, and clear the prelims was very challenging because everyone studies for minimum 1 year, 1.5 years to give attempt in prelims. तो but मेरा basic था, confidence था, मैंने अटेम्प्ट दिया 2013 में. आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट व्हेन रिजल्ट्स केम आई वॉज शॉक. मेरा नाम नहीं था. वो सिर्फ रोल नंबर रहता है रिजल्ट लिस्ट में, और रोल नंबर नहीं था. देन नेक्स्ट ईयर व्हेन आई सॉ द मार्क्स, तो मार्क्स एक्चुअली जनरली इंटरव्यू मेन लिस्ट के बाद रिलीज होता है, तो आई हैड मिस्ड बाय 0.66 मार्क्स. तो इट वॉज वेरी 241 कुछ कट ऑफ था. आई हैड गॉट 240.33. तो आई वॉज वेरी क्लोज, बट आई मिस दैट अटेम्प्ट. देन जैसे रिजल्ट आया, देन आई केम टू नो नेक्स्ट ईयर इज 2014 इज माई ओनली अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट. तो आई प्लान फॉर 1 year कैसे करना है, क्या करना है. जॉब भी था, आई यूज्ड टू वर्क पार्ट टाइम. लाइक दिस आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. ये सब चैलेंजेस था. तो पेरेंट्स को जो आपने बताया कि भाई वेल पेड जॉब छोड़ के मेरे को अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या रिएक्शन था उनका? फ्रैंकली स्पीकिंग, पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ. तो मैंने चेन्नई को शिफ्ट किया. जॉब था एक्चुअली, आई वाज वर्किंग देयर. मैंने बोला कि जॉब उधर है, सो आई एम गेटिंग ए बेटर जॉब. बट मैंने चेन्नई को शिफ्ट किया बिकॉज आई डेंट वांट टू मच ऑफ प्रेशर. यूपीएससी में क्या होता है कि एग्जाम इज लाइक मोस्टली साइकोलॉजिकल, लॉट ऑफ प्रेशर, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रेशर्स. तो कोई ना कोई फ्रेंड्स पूछते, फैमिली पूछते हैं कि वेदर यू क्लियर, कैसे, हाउ डू क्या हो गया रिजल्ट. तो यू बिकम इन अ लॉट ऑफ प्रेशर. इट्स बेटर कीप लो प्रोफाइल एंड कीप वर्किंग फॉर इट. फादर को तो जब रिजल्ट आया तभी ही केम टू नो, टीवी पे नाम आ रहा था इन बैंगलोर. तो ही सॉ, he asked when did you prepare, when did you do the exam. तो ऐसे उनका रिएक्शन था. किसके फोन आए? जैसे आपने सब लोग ने देखा कि अच्छा अब आप आईपीएस बन गए, ऑफिसर बन गए हो, तो मम्मी का, फादर का क्या रिएक्शन था? ना ऑल इंडिया रैंक 180 आया. आई वाज लाइक लिटिल हियर एंड देयर. तो आई हैड गिवन माय बेस्ट. मेरा मेन एम था कि आईएएस ऑफिसर होना है. देन जब मैंने रैंक देखा, देन आई न्यू दैट आईएएस तो मिलने वाला नहीं है. सेकंड ऑप्शन फॉरेन सर्विस था और थर्ड ऑप्शन आईपीएस था. मेरे को कंफर्म था कि आईपीएस मिलने वाला है. माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड 2 years का हार्ड वर्क, इट पेड ऑफ. प्रिपरेशन का टाइम में किसी से बात नहीं करते थे, या फोन, स्मार्टफोन नहीं था, छोटा फोन था, कभी कभी घर पे फोन करते थे. बट सडनली आफ्टर रिजल्ट्स, कंटिन्यूस 5 days मेरे को फोन आया, continuous 5 days. So I was like very much shocked. इतने लोग, how important was this to crack the exam, and what kind of expectation people had. तो मेरे को बाद में समझ में आया. तो पहली पोस्टिंग ऑफिसर बनने के बाद कहाँ मिल गया? पहले पोस्टिंग एक्चुअली मेरा, इसके बाद हमारा कैडर एलोकेशन होता है. सर्विस एलोकेशन होने के बाद कैडर एलोकेशन होता है. मेरे को महाराष्ट्र कैडर, फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक था कैडर, तो वो नहीं मिला. सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र था, सो आई गॉट महाराष्ट्र कैडर. उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग होने के बाद वी गेट इनटू डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग. तो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग था सोलापुर में. तो अर्ली डेज एज एन ऑफिसर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने? जैसे सोलापुर में गए, सो ट्रेनिंग था. देन वी कंप्लीटेड एवरीथिंग. वी वर हैड सम ट्रेनिंग इन मुंबई. मुंबई से मैंने ट्रेन पकड़ा. मूवीज में देखते हैं कि जैसे ट्रेन से उतरते, देयर आर पीपल टू वेलकम यू इन द रेलवे स्टेशन. वैसे ही हुआ एक्चुअली. पीपल वर देयर इन रेलवे स्टेशन. गनमैन थे, ड्राइवर थे, कुछ ऑफिसर्स आए थे, देखिए बोके एंड ऑल. तो मैं रात को सो के वो सुबह उठा था. देन पीपल वेलकम. तो वो ओवरवेलमिंग था, क्योंकि कभी नहीं देखा था कि समवन इज गोइंग टू कम. कुछ गाड़ी आएगा, दे विल टेक यू एंड you start working in the field. So this was a very new experience. सोलापुर में हमारे एसपी सर, he was my first mentor, वीरेश प्रभु सर. He was one of the very dashing,
वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी गुड ऑफिसर। तो इनके अंडर मैंने काफी सीखा। उधर इश्यूज काफी सर ने एक्सपोजर दिया। लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज हो, कैन बी इलीगल सैंड माइनिंग हो या इलीगल लिकर ब्रीविंग एक्सेट्रा। तो ये काफी एक्सपोजर मिला मेरे को। देन पंढरपुर करके जगह है, ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र पीपल कम फॉर दर्शन इन वारी फेस्टिवल। लैक्स ऑफ पीपल कम। उसका जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज था, होल प्रोफेशन, 10 किलोमीटर का प्रोसेशन रहता है, 10 किलोमीटर तक लोग रहते हैं। तो ये सब एक्सपोजर मिला। इट वॉज वेरी गुड। So what's that one thing that you love about your profession the most? आईपीएस प्रोफेशन में वी हैव लॉट ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है और इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हो। कोई भी anyone comes to you, you have a lot of power, you have lot of laws to give them justice. That is what I like the most. So what all mission have you handled till date in your profession? जब मेरा सेकंड पोस्टिंग हुआ, इंडिपेंडेंट पोस्टिंग इन थाने रूरल, तो इट इज क्लोज टू मुंबई एंड उधर मैंने चार्ज लिया। मेरे को इट हैड लॉट ऑफ इश्यूज लाइक रिलेटेड टू ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, देन illegal activities, तो and cyber crimes बहुत ज़्यादा थे, and lot of theft, lot of gangs were there. So 3-4 things I would like to highlight. One is related to cyber crimes. तो मेरा cyber security में I had worked in software company, so I had worked on cyber security itself. इसका मैंने knowledge policing में लेके आने का कोशिश किया। तो lot of cyber crimes were reported. हमने streamline किया, एक cyber lab हमने शुरू किया उधर। हमारे आईजी सर के डायरेक्शन में नवल बजाज सर थे, सो ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल द न्यू इनिशिएटिव्स। वो साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू वुमन, चाइल्ड के रिलेटेड, तो ये सब किया। एक इम्पोर्टेंट केसेस भी हमने क्रैक किया, कुछ गैंग्स हमने पकड़ा। सो दिस वाज वेरी गुड। और हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, वी ट्रेन लॉट ऑफ यंग कॉलेज स्टूडेंट्स कि हाउ डू वी डील विद साइबर क्राइम्स एक्सेट्रा। प्रोफेशनल लोगों को हमने लेके आए एंड वी ट्रेन्ड अवर पुलिस ऑल्सो। दैट वाज वन गुड थिंग। सेकेंड थिंग, इधर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा था मीरा भाईंदर एरिया में, सो वी टुक लॉट ऑफ एक्शन अगेंस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल दिस प्रोस्टिट्यूशन। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। यंग गर्ल्स आर एक्चुअली माइनर्स आर एक्चुअली ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, नॉर्थ ईस्ट हो या आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, इधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है इन द प्रॉमिस ऑफ जॉब एक्सेट्रा इन मुंबई। तो ये लोग मुंबई में आते हैं, देन दे आर फोर्स्ड इनटू दिस बिजनेस। तो दिस वाज वेरी डिसहार्टनिंग। तो हमने काम किया माइनर्स के ऊपर, वी रेस्क्यूड लॉट ऑफ माइनर्स। तो इसमें भी हमने आई इन्वॉल्व लॉट ऑफ एनजीओज इस काम में। देन देयर वी एक्चुअली अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने सिस्टम्स तैयार करने की कोशिश किए विक्टिम से। इनको रिहेबिलिटेशन का काम हमने शुरू किया, काउंसलिंग और इनका रिहेबिलिटेशन, सो दैट दे अगेन डोंट कम बैक एंड दे गेट सम गुड जॉब्स। ये सब हमने काम शुरू किया एनजीओ के साथ और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी था उसमें। थर्ड, हमने ड्रग्स के ऊपर काम किया। मीरा भाईंदर में लॉट ऑफ यूथ्स वेर इन गेटिंग इनटू ड्रग्स, तो हमने ट्रिपल एक्शन प्लान तैयार किया था। वन इज अवेयरनेस बिल्डिंग, तो इसके अगेंस्ट कंप्लीट हमने कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया। वी विजिटेड ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। देन वी टुक एक्शन। तो जो भी ड्रग सप्लायर्स थे, पेडलर्स थे, तो वी क्रैक वेरी बिग केसेस। सप्लाई चेन हमने बंद करने की कोशिश की, वी वर सक्सेसफुल। देन जो ड्रग एडिक्ट्स थे, वी हैड आइडेंटिफाइड अराउंड 2000-3000 ड्रग एडिक्ट्स यूथ्स थे। तो वी हैड अ पूल ऑफ डॉक्टर्स, हमने काउंसलिंग शुरू किया इनका। तो रिहेबिलिटेशन के लिए पूरा हमने प्लान किया। वी हैड अराउंड 20-25 डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, वेरी गुड हॉस्पिटल से, वेरी प्रोफेशनल डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट। तो इनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया। देन बहुत एडिक्ट्स थे, देन कुछ एनजीओस थे, दे वर कीपिंग देम फॉर 3 months, 6 months। उनका पूरा डी एडिक्शन करके वी ट्राई टू इंटीग्रेट बैक टू द सोसाइटी। दिस वाज सम ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स। So who is your mentor as an officer? मेरे आईजी सर थे, नवल बजाज सर। सर ने काफ़ी इनिशिएटिव्स में सपोर्ट किया। तो सर का ये था कि हम लोगों का फीडबैक लेना चाहिए। तो ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया फर्स्ट टाइम। पीपल का क्या क्या फीडबैक है हमने लिया, देन वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। सेकेंड, हमारा पुलिस ऑफिसर स्टाफ काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, सो नो वन गिव्स देम ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। दिस वाज नॉट डन। सो हमने
वो प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोफेशनल को भी हमने इनवाइट किया, हमने भरोसा सेल शुरू किया। इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव। इट इज नाउ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस महाराष्ट्र। तो जनरली ये देखा गया है कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है, धूप में खड़ी रहती है, बरसात में खड़ी रहती है, और हर एडवर्स सिचुएशन में फ्रंट लाइन अगर देखा जाए तो पुलिस ही है जो खड़ी रहती है। पर जो ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू एडवांटेज जो उनको मिलना चाहिए वो पब्लिक की ओर से वो सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? मोस्टली मेरे को भी ये पहले ही था। अभी समझो, अभी कोविड टाइम्स मोस्ट एनफोर्समेंट इज विद द पुलिस। अभी मास्क पहनना है, ट्रैफिक का वायलेशन करना नहीं है, या सोशल डिस्टेंसिंग करना है, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इशू हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैव टू सेफली रीच सो दैट बीच में कुछ होता नहीं है, या कोई कभी भी लूट नहीं करते। बहुत सारे इंसिडेंट हुआ कि लूट हो गया। तो हम देखते हैं कि मोस्ट वर्क जो फील्ड में या इन्फोर्समेंट करना है ऑन ऑल दिस, तो पुलिस ही काम करता है। कोविड की वजह से पीपल डिडंट नो कि पुलिस एग्जैक्टली क्या है। तो हमको पुलिस क्या लगता है, मैं जब आई वाज आल्सो नॉट नोइंग दिस पुलिस सिस्टम, ओनली एक्सपोजर हमको मिलता है कि ट्रैफिक पुलिस। कभी कभी इतना हमारा बैड एक्सपीरियंस रहता है कि वी आवरसेल्फ वायलेट एंड देन वी आर कॉट बाय ट्रैफिक पुलिस एंड देन वी स्कोल्ड देम और वी ब्राइब देम एंड हम बोलते हैं कि पुलिस बहुत खराब है। अदर थिंग यू गुड नॉर्मल सिटीजन डू इज पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए देयर ऑल्सो पुलिस आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस कि आपका पूरा वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक करे। क्रिमिनल्स को या दूसरे लोगों को दे शुड नॉट बी गिवन पासपोर्ट। तो इसमें हमको लगता है कि पुलिस एक खतरनाक है, दे आर करप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पीपल डोंट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क या एफर्ट्स डन बाय पुलिस। तो बट आफ्टर कोरोना मेनी पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स बढ़ गया सोसाइटी में। वी आर नॉट गेटिंग हॉस्पिटल्स, वी आर नॉट गेटिंग एसेंशियल गुड्स, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स था। देन लॉट ऑफ पुलिसमैन स्टार्टेड, ऑफिसर्स इनिशिएटिव शुरू किया अक्रॉस इंडिया। तो देन द इमेज ऑफ पुलिस नॉट जस्ट एनफोर्समेंट या जो डंडा लेके मारने वाले, बट एज अ सोशल सर्विस का भी काम कर सकते हैं एंड दे आर ह्यूमन बींग्स एंड उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। दिस हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। So what motivated you to be associated with Mindtree Green Community? Mindtree Green Community, मेरे को naturally some inclination है for environment, तो I used to like being it in nature and ये जब भी मैंने सुना कि there is some community like this called Mindtree में एक green initiative है, then I naturally went there and then like-minded people मिले and I used to like going around planting trees, तो ये मेरे को अच्छा लगा। So how was the response of tree plantation drive in Chandrapur? चंद्रपुर में it was very good actually। हमने मेरा लास्ट पोस्टिंग गोंडिया में भी we took this initiative। ये completely जंगल एरिया, half of the district गोंडिया और चंद्रपुर, तो it is forest area, we have big tiger reserves, तो but city area little less trees, there's a lot of big industries, pollution भी है। then जब अभी बारिश का सीजन शुरू हुआ, I had already planned for this. So this is my passion. I plant a lot of trees, like minimum 5,000 to 10,000. I don't have a count of कितना trees लगाता हूँ। अभी चंद्रपुर में भी है, अभी last 2-3 days में हमने 300 to 400 trees सिर्फ हमारे कैंपस में लगा है, सिर्फ हेडक्वार्टर्स में, और बाकी पुलिस स्टेशंस में भी हमने बताया कि this drive should continue। और next 3 months we have planned to involve lot of children, क्योंकि ये यूथ को जाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे आर द वंस दे प्लांट ट्रीज, सो उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेनिफिट होगा। एंड अवेयरनेस अबाउट नेचर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये भी हम कर रहे हैं। सो टेल अस अबाउट योर बुक इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। दिस बुक स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट व्हेन जब इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू हुआ। ये नया टॉपिक ऐड हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करके, 2013 में ही ऐड हुआ था। देन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं था। रामचंद्र गुहा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एक बुक है, बट इट बहुत बल्कि है, पूरा स्टोरी है। यूपीएससी कैसे कि दे डोंट आस्क मच क्वेश्चंस इस टॉपिक में, बट दे आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस। और तो इतना बड़ा बुक पढ़ना फॉर 10-12 days या 1 month एंड यू डोंट हैव प्रिसाइज काइंड ऑफ मटेरियल,
तो मैंने सोचा कि ये दिस बुक शुड कम। तो मैंने नोट्स तैयार किया था, आई थॉट आई वी शुड पब्लिश इट एज अ बुक। तो ओब्रिज पब्लिशर्स ने हम मेरे को अप्रोच किया था, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फॉर पास्ट 1 year एंड का रिव्यू करके कंप्लीटली उसका मॉडिफाई करके द बुक गॉट पब्लिश्ड लास्ट ईयर एंड होपफुली इट विल रीच लॉट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। It is very precise, short, and it gives all the information, all the topics are covered. किसी को अगर बुक लेनी है तो कहाँ से वो बुक ले सकता है आपकी? Amazon में बुक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बाय अतुल कुलकर्णी सर्च करोगे तो you will get that book in Amazon. So it is available on Amazon. So any best and worst moment in your career till date? हाँ, चैलेंजिंग मोमेंट्स बहुत कुछ है, बेस्ट मोमेंट्स भी बहुत बहुत है। भी बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, दे कम विद लॉट ऑफ पेन, कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। आपके आजू बाजू फैमिली में भी आप देख सकते हो कि कोरोना की वजह से बहुत सारे इश्यूज हुआ है। देन द पीपल कम टू अस फॉर सम एक्सपेक्टेशन दैट उनको कुछ जस्टिस मिले, उनका कुछ मदद होना चाहिए एक्सेट्रा। तो एवरी टाइम आई हेल्प सम विक्टिम और एनी कंप्लेनेंट, आई गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड दिस इज माय मेन मोटिवेशन टू सर्व द सोसाइटी, serve the country. Challenging moments बहुत कुछ है। Previous posting was Naxal affected district and थाने में भी it was lot of crimes से पुलिस स्टाफ बहुत कम था। Now it has become a commissariat, lot of officers, men, staff ज़्यादा हो गए। So उधर challenges था, crime was too much and load on police staff काफ़ी था। ये सब हमने वर्कआउट किया with the community initiatives. This posting also we have little bit Naxal affected. So because of development issues, people in the villages, mostly tribals, for education, skill development, ये सब नहीं मिल रहा था। So mostly we took initiative on two fronts. Skill development youth के लिए सेंट्रल का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ हमने टाइप करके वी स्टार्टेड ट्रेनिंग द यूथ्स इनका 10th स्टैंडर्ड पास एंड 12th स्टैंडर्ड पास। डिफरेंट स्किल्स में हमने फोकस किया, इंजीनियरिंग स्किल्स हो या मैकेनिकल का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिलेटेड हो, कंप्यूटर स्किल्स। देन फॉर लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, घर में कुछ होममेड प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब हमने ट्रेन किया एंड we were successful in giving jobs to 1,500 plus people. We tied up with good companies across Maharashtra. Placement कुछ companies है. Then these people have got jobs. So this was one of the good examples. Then education के ऊपर हम focus कर रहे कि because of Corona, all the kids उनका education affect हो चुका है. तो ये दोनों हो जाएगा, इनका एक empowerment long term के लिए होगा, impact long term के लिए होगा। They will start getting exposed to newer worlds. ये actually गांव में रहते, they don't get exposed to different things. तो हम education करें, इनका एक job मिल गया, they start earning their own livelihood. तो their automatically betterment of life हो जाता है and they are not attracted towards extreme ideas. ये सब हम कोशिश कर रहे। So what are all do's and don'ts you would suggest for students who are willing to prepare for UPSC? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डूज में यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। मेरा ब्लॉग भी है, आपको लिंक शेयर करता हूँ या गूगल कर सकते हो अतुल कुलकर्णी IPS ब्लॉग करके, यू विल गेट दैट ब्लॉग। अतुल कुलकर्णी IPS.com ब्लॉग है, उसमें आई हैव गिवन लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, व्हाट टू डू, हाउ टू प्रिपेयर एंड मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट नॉट टू डू। सब लोग प्रिपेयर करते, 5 लाख लोग हर एवरी ईयर एग्जाम देते हैं, सब लोग को पता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, विच न्यूज़पेपर, एवरीवन रीड्स द सेम बुक्स, सेम न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, बट कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, दे गेट बेटर। इट इज ओनली योर स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट गो फॉर टू मेनी बुक्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अभी ऑनलाइन में, टेलीग्राम ग्रुप्स इतने हैं कि यू गेट लॉट ऑफ मटेरियल, यू गेट कंफ्यूज। Go with standard books, not just online का कुछ नोट्स मिल गया इधर उधर करके, that will not help। तो आपको डेप्थ में जाना है, read standard books and don't go for shortcut। शॉर्टकट से UPSC एग्जाम नहीं क्लियर होगा, because you have to have a comprehensive study of each topic। दो चीज़ें, एक वर्टिकल डेप्थ एंड हॉरिजॉन्टल डेप्थ। कोई भी अपना एक टॉपिक लोगे, एग्जाम्पल मेरे सर ने बताया था, शंकर सर फ्रॉम चेन्नई, तो उन्होंने बताया था ये स्ट्रेटेजी। इफ यू टेक वन वैक्सीन इज इन न्यूज, तो इफ फाइजर इज इन न्यूज,
So how do we read and how do we expect question from UPSC? This is very important. तो एक तो है वर्टिकल, मतलब फाइजर का वैक्सीनेशन आ रहा है, the who you get deep into who made it, what is the origin, what clearances are needed, how it is going to come, what are the issues, controversy क्या है, ये सब पता होना चाहिए. ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल डेप्थ. द हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट वैक्सीन्स. तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो हु इज मैन्युफैक्चरिंग दिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, इसका चैलेंजेस क्या है, व्हाट क्लियरेंसेस. तो ये दिस इज वन टॉपिक यू कवर बोथ इन डेप्थ एंड अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल. एक कार का एग्जांपल ले लीजिए. इफ यू समथिंग BMW का कुछ इशू हो गया, इफ देयर इज सम डिफेक्टिव थिंग, then it is in news, something like that. So you get into the depth and read other related news also. So like this you cover most of the topics. Second thing, आपका general awareness, कोई भी चीज आपके आजू बाजू हो रहा है, so every day you are using something. तो मैंने बहुत सारे UPSC स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम लिखा, they had asked about some vegetarian symbol का क्वेश्चन था UPSC में. तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट यू गेट सो मच कंफ्यूज. वेजिटेरियन सिंबल, जो भी आपके डेली प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, आपके चिप्स पैकेट हो या एनी FMCG गुड्स ले लो, दे आस्क वेदर देयर इज अ सर्कल, ग्रीन सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल, कलर एंड जस्ट शेप के वजह से 4 ऑप्शन दिए थे. 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद इतना कंफ्यूजन हो गया था कि डेली देखते हो वो सिंबल, but you have not given your attention or mind to the minute details. जब वो ऐसे UPSC ट्विस्ट करता है क्वेश्चंस, मोस्टली करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो whatever you are seeing, टूथपेस्ट हो, टूथपेस्ट में कलर कोडिंग है, नीचे आप देख लीजिए, डेली आप टूथपेस्ट सभी लोग यूज करते, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका रीजन क्या है. तो एक स्ट्रिप है, इट इज ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ये कलर कोडिंग है. So no one knows about it या pays attention about it. तो UPSC इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एक ग्रीन या ब्लैक कलर है, तो व्हाट डज इट मीन फॉर द कंज्यूमर्स, इसका कुछ मीनिंग है. तो जो भी आप कर रहे हो, डेली एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, तो मैंने 2 एग्जांपल दिया, तो इसका अवेयरनेस होना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज व्हाट बिल्ड्स अप योर कैरेक्टर, विच इज वेरी मच नीडेड फॉर UPSC. ये सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन योर आंसर्स, in your interview process. So how and where to start your preparation? What is the procedure? Preparation it starts with NCERT basic, जो हम स्कूल में पढ़ाई किया वही बेसिक है. 6th standard to 12th standard सभी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना. You get hold of the basic. This will need 4 to 6 months time. इधर से ही शुरू करना है. Then you have all your standard books based on different subjects. वो सब standard books ही पढ़ना है. So what would be your advice to new officers? Young officers, they're all brilliant, fresh officers are with different backgrounds. So my only advice is they all are brilliant, उनको भी पता है. Only thing is you get lot of perks, you get lot of attention, etc. Don't get too much attached to all these things. You have your focus on your job. We are working for the country, nation के लिए work करें, and we are working for the society. ये मोटिवेशन होना चाहिए. एंड वी हैव टू बी इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल. पर्सनल मतलब भी हमारा नाम ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए. एंड काम करते हो तो इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ योर वर्क, इट इज ओके फाइन. एंड वी हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड नॉट गेट बायस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग. So last question, one line that defines you. मेरा एक ही है कि हार्ड वर्किंग और सिंसियर, taking effort and ground to earth is my thing. So thank you very much for your time, and it was pleasure talking to you and listening to your advice for young generation. Thank you very much for your time. Thank you very much, Gaurav ji. It was my pleasure. I wish all the civil servant aspirants do well and hopefully you qualify and achieve your dreams. Thank you. All the best to you.